let's go on to the third sum of our not for profit entities. Now, in the first sum, if you people have solved it by the help of video lecture, you might have seen we were given with trial balance, and from the trial balance, we made up income expenditure account and balance sheet. Now, in this given sum, we are given with receipt and payment, and from the receipt and payment, we need to make income expenditure account and balance sheet. Okay, so now whenever we are making the format of income expenditure and balance sheet, when receipt and payments are given, the items on the receipt side will indicate either it's a capital receipt or it's a revenue receipt. Whatever the items are there on the receipt side, either it's a capital receipt or it's a revenue receipt, and that we would be showing it on the income side or on the capital, that is liability side. कैपिटल रिसिप्ट होगा ना तो लायबिलिटी में जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है तो वो इनकम में जाएगा. जबकि पेमेंट साइड अगर हम देखेंगे, पेमेंट साइड, so if it's a capital expenditure we'll take it to the balance sheet asset, and if it's a revenue expenditure we would take it to income expenditure account. So this hint, it should be kept in your mind when we are bifurcating the sums, and then we would be solving all the adjustments one by one. Okay, so let's start. Take up your pencil. I have also taken up my pencil. Let's start with the bifurcation. कौन सी चीज कहाँ जाएगी? Let's start with that. Now, the opening balance of cash. Receipt में सबसे पहला opening balance of cash. Now this item we put across, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ना ही ये बैलेंस शीट में जाएगा. जैसे अभी हमने कहा कि रिसिप्ट साइड में इट्स आइदर अ कैपिटल इनकम और इट्स अ रेवेन्यू इनकम. सो कैपिटल इनकम लायबिलिटी में जाती है, रेवेन्यू इनकम इनकम में जाता है. तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, तो ये कहीं नहीं जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में. लेकिन इसको स्टार करके रखो, इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है सम में. स्टार करके रखो. सब्सक्रिप्शन विल गो टू इनकम, रेवेन्यू इनकम है इसलिए. इंटरेस्ट विल अगेन गो टू इनकम. सेल ऑफ फर्नीचर को स्टार कर दो. सेल ऑफ फर्नीचर को स्टार कर दो. देन डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग. नाउ दिस इज अ स्पेसिफिक donation for club building. It's a specific donation, so a specific donation has to be separately shown in the liabilities. अगर जनरल डोनेशन है तो कैपिटल फंड में ऐड कर देने का, स्पेसिफिक डोनेशन है तो सेपरेटली वी हैव टू शो ऑन टू द लायबिलिटी साइड. ग्रेट. तो रिसिप्ट साइड का बाइफर्केशन हो गया. सेल ऑफ फर्नीचर को स्टार किया है, इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर अ नेशनल फुटबॉल क्लब, तो ये परचेज हमने जो फुटबॉल किए हैं, इट्स माय एक्सपेंडिचर. फुटबॉल हमें परचेज करने पड़ते हैं भाई, एवरी मैच में वो फुटबॉल ही तो खेलेंगे, प्रैक्टिस में फुटबॉल ही लेंगे, तो परचेज ऑफ फुटबॉल. देन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन की फीस भरनी पड़ेगी, दैट इज एक्सपेंस. अफिलिएशन फीस मतलब अपना फुटबॉल क्लब जो है किसी नेशनल क्लब के साथ या किसी रिकग्नाइज्ड क्लब के साथ वो अफिलिएट होता है, तो उसकी फीस हमने भरी, दैट इज अगेन एक्सपेंडिचर. देन रेंट ऑफ द प्लेग्राउंड इज अगेन एक्सपेंडिचर. रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, traveling expense. Investment is our asset. Salary expenditure. Furniture is asset. Miscellaneous expense is expense. And closing balance of cash. Now closing balance of cash we need to show it on to the asset side, because payment side जैसे मैंने कहा expenditure या तो asset, receipt side income का तो liability. ये बनने मत जैसे, पर opening balance we have to see where we have to write. Now prepare club's income expenditure account for the year ending on 31st March and the balance sheet on that after taking into the account the following information. Subscription include 10,000 outstanding for the year 13-14. Underline 13-14. मतलब हमारे ये जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 13-14 लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इसमें कुछ एडेड है. तो यहाँ पर
ब्रैकेट करके उसमें लिख देंगे हम LY, लास्ट ईयर का कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इसमें आ गया है। देन 14-15 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 16,000। नाउ दैट इज ऑफ करंट ईयर, तो उसमें लिख दो CY, करंट ईयर is still outstanding 16,000 and some members paid 15-16 का सब्सक्रिप्शन 8,000 एडवांस में, दैट इज ऑफ नेक्स्ट ईयर। उन्होंने एडवांस का पेमेंट हमको दे दिया है और सारी आइटम सब्सक्रिप्शन में चली गई हैं। तो हम देखेंगे इसकी इफेक्ट हमें कैसे देनी है, विल वॉच इट आउट, विल सी कैसे देना है। देन इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट पर टिक कर दो। अक्रूड का मतलब क्या होता है, लिख लो, इट इज आउटस्टैंडिंग, अक्रूड इज आउटस्टैंडिंग। Then the book value of the furniture sold is 14,000. Now this is connected with the sales of furniture. तो 14,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर हमने सेल किया हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। Then rent of playground and salary for the year 14-15. Now 14-15 जहां पर भी दिखता है that is current year, so rent of the playground and salary को टिक करेंगे। Whereas outstanding rent of 13-14 that is of last year, 13-14 is of last year, 1,500 has been paid during this year, गए साल का outstanding अभी हमने पे किया है। Then there is a stock of ball with the club, फुटबॉल का स्टॉक कुछ बच गया। एंड देन फर्नीचर पर हमें डेप्रिसिएशन देना है 20%, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन देना है 20%। नाउ बैलेंस शीट का अगर आपने बैलेंस शीट का अगर आपने फॉर्मेट अगर ध्यान से पढ़ा हो, समझा हो, देखा हो, तो उसमें पहली आइटम कैपिटल फंड की होती है, जनरल फंड, कैपिटल फंड, फर्स्ट आइटम इज रिक्वायर्ड ओवर देयर। इन द सम जब भी मैंने अभी ये बाइफर्केशन किया, कहीं पर भी कैपिटल फंड नहीं मुझे मिला, कहीं पर भी मुझे कैपिटल फंड नहीं मिला, तो बेटा राइट डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, write down a very important note. When capital fund information is not available, when capital fund information is not available in the question, prepare balance sheet of last year, prepare balance sheet of last year and find out the amount of capital fund. हमेशा मुझे यही करना पड़ेगा, जब भी कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं होगी, मेरे पास नहीं होगी, तो मुझे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है और उस पर से हमें कैपिटल फंड का इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो अगर हम लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को ज़रा हम समझें, ज़रा हम उनको सर्कल करें, उनको हम अगर टिक करें, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन कौन सी है जरा चेक करते हैं बेटा, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन। सो माय लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन इज, माय लास्ट ईयर्स इंफॉर्मेशन इज, ये सब्सक्रिप्शन में जो आया बेटा वो लास्ट ईयर के रिलेटेड है। देन रेंट ऑफ द प्लेग्राउंड वो लास्ट ईयर के रिलेटेड है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैन आई से वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, इसलिए इस ईयर का रिसिप्ट एंड पेमेंट में एज अ ओपनिंग बैलेंस आया, तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश विच बिकम्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर, दैट इज वाई स्टार किया हुआ है, हम उसे अभी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लेंगे। और एक और आइटम आएगी, आप लोग सोच के रखो, और कौन सी एक आइटम आएगी, पहले इतनी जो मुझे दिख रही है मैं उसकी पोस्टिंग कर रहा हूँ, फिर मैं एक और आइटम आपको दिखाऊंगा लास्ट ईयर का। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है मेरे पास, जो मेरे को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाना है, दैट इज आई नीड टू ड्रॉ द बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2014, दैट इज अभी करंट ईयर में ही अपने को बना लेनी है बैलेंस शीट। करंट ईयर की बैलेंस शीट 31/3/15 की है, लेकिन ये जो शुरू हुई हमारा जो साल शुरू हुआ लास्ट ईयर का, जो हम बनाएंगे बैलेंस शीट वो है ये, तो उसमें हम कैश बैलेंस
we would write it on to the asset side. Cash balance, that is 8,000. Cash balance is 8,000. देन सब्सक्रिप्शन में कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, अगर आपके पास पैम्पलेट है तो मेरे पास भी यहाँ पर है, तो उसमें से देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमको वो पैसे मिलने बाकी हैं, दैट इज 10,000 इज आवर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. देन रेंट हमारा कुछ पेएबल था, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कुछ पेएबल था. देखो ज़रा कितने हैं रेंट पेएबल. लास्ट ईयर का 15 था एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी 10,000 थे, तो रेंट की अमाउंट है 1500. बेटा एनी अदर इंफॉर्मेशन कुछ आपको लग रहा है इसको छोड़ के लास्ट ईयर का रिलेटेड हो, which is related to the last year, and I am drawing the balance sheet so that I can get the information of capital fund, and that information I'll put it in our current year's balance sheet, which will help us to tally the current year's balance sheet. तो एक और इंफॉर्मेशन है, वेरी गुड, यस यू गॉट इट, नो, यस, नो. थर्ड इंफॉर्मेशन चेक करो, थर्ड इंफॉर्मेशन चेक करो. द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड वॉज 14,000. मतलब 14,000 की हमने फर्नीचर बेची 10,000 में. यहाँ पर जरा देखो, मतलब 14 वाला 10,000 में हमने बेच दिया. अब हमारे पास कोई मशीन नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, और फिर एडिशनल 24,000 का हमने अभी खरीदा और परचेज किया. दैट इज वाई इट्स ऑन द पेमेंट साइड. तो कहना से 14,000 का फर्नीचर पहले से था हमारे साथ, जो अभी करंट ईयर में पहले उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया 10,000 में, and then I bought this new furniture or additional furniture of 24,000. So that's the key information कि ये जो 14,000 है that is also pertaining to the last year. The furniture balance already there with me, the furniture already lying with me. तो यहाँ पर हम लिख देंगे furniture, we'll write furniture 14,000. And now we close our last year's balance sheet and try to get the information of capital fund. बस जो भी लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन थी इतनी हमने ढूंढ के निकाली. अब हमने बैलेंस शीट टैली करनी है. बेटा तुम्हें हमेशा पता होता है कि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल आएगा. तो जो बैलेंस शीट का मेरा टोटल आ रहा है वही टोटल हमने यहाँ लिख देना है, बिकॉज the total of the balance sheet always matches, the assets are equal to liability. So 32,000 में से ये 1500 अगर माइनस करें, 32,000 में से 1500 माइनस करें तो 30,500 आएगा. that is my capital fund. અને ब्रैकेट में लिखो this is balancing figure. मतलब ये था नहीं हमारे पास, हमने असेट का पहले टोटल कर दिया, असेट का हमने पहले टोटल किया, एंड टोटल करने के बाद जो भी डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस वी टुक इट इन आवर कैपिटल फंड. दैट डिफरेंस वी टुक इट इन आवर कैपिटल फंड 30,500. क्योंकि कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं थी इसलिए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ी, कीपिंग इन माइंड द लास्ट ईयर्स इंफॉर्मेशन. तो ये जो कैपिटल फंड आया वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में रखेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है, इसीलिए तो ढूंढा था 30,500. અને પછી अपने सम की शुरुआत करने की. उसके बाद हमें हमारे सम की शुरुआत करने की. कैपिटल फंड 30,500 आला. अब देखो सम सपासप करते हैं, देख सपासप, तो देख अब सपासप. नाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट में चले जाते हैं. पहला ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हमने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ले लिया, वार्ता पति गई. देन सब्सक्रिप्शन, कहना से मेजर सोर्स ऑफ इनकम, तो इनकम साइड हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, subscriptions. But we need to write the amount in the inner column, 2,46,000. અને
प्यार से, प्यार से 5-6 लाइन छोड़ देना, बहुत सारे एडजस्टमेंट है, प्यार से 5-6 लाइन छोड़ देना. देन इंटरेस्ट. સર બોલો ભણવામાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં ને ઓનલાઈનમાં તો બાપા હાથ જોડું સ્ક્રીન સામે બેસીને એવી આંખો ખેંચાતી હોય છે ને સર, કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં મને. પણ અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ થયો છે 2000 रुपया. दैट इज ऑल्सो एन एडजस्टमेंट, वी राइट दैट इन द इनर कॉलम. अब देखो सेल्स ऑफ फर्नीचर है 10,000 रुपए का, 10,000 का हमने फर्नीचर बेचा, जबकि बुक वैल्यू है उसकी 14,000 की. तो पुराना जो फर्नीचर था वो भी ये बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि 14,000 का था अपने पास, लेकिन 14,000 का हमने बेच दिया 10,000 में. तो यहाँ पर हमको लेस करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको लेस करना पड़ेगा सेल ऑफ फर्नीचर. नौ 10,000 की आइटम हमने 14,000 की आइटम 10,000 में सेल कर दी, तो कहना से 4,000 का हमें नुकसान हो रहा है. तो यहाँ पर जो सेल ऑफ फर्नीचर है, यहाँ पर जो सेल ऑफ फर्नीचर है, यहाँ तो हमको पूरी बुक वैल्यू माइनस कर देनी है, पूरी ही बुक वैल्यू माइनस कर देनी है. और अभी फर्नीचर का बैलेंस नील बता रहा है अपने बुक्स में, क्योंकि पूरा का पूरा 14,000 का हमने पूरा 14,000 का बेच दिया. 14,000 का फर्नीचर था, उसको वो 14,000 का पूरा बेच दिया, लेकिन 10,000 में बेचा है 10. सो हिडन इंफॉर्मेशन क्या आती है, 4,000 का नुकसान हुआ है, तो वो हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. वो 10,000 हम कहीं नहीं बताएंगे, लेकिन 10,000 की इफेक्ट इस तरह से देंगे हम कि वहां से 14,000 असेट में से माइनस कर दिया क्योंकि उतना फर्नीचर बिक गया, लेकिन यहाँ पर करस्पॉन्डिंग लॉस हमने 4,000 का दिखा दिया. सो दैट इंडिकेट्स कि 14,000 का तुमने बेचा तो है, लेकिन 4,000 का लॉस है. इट मीन्स हमने उनको 10,000 में बेचा. तो 10,000 को जो मैंने स्टार करा है ना, उसकी डायरेक्ट इफेक्ट कहीं नहीं आएगी. डायरेक्टली हम 10,000 कहीं नहीं बता रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में 10,000 की इफेक्ट दे रहे हैं. यहाँ पर देखो सेल 14 का किया माइनस करके, फर्नीचर में 14,000 माइनस किया, दैट्स क्रेडिट. एंड यहाँ पर 4,000 बता दिया डेबिट, मतलब 10,000 रुपया नेट. वहां पर -14 और यहाँ पर 4,000, क्योंकि पूरे 14,000 का फर्नीचर 10,000 में बेचा है, तो 4,000 का नुकसान है, तो 4,000 का वो नेट नुकसान हमने वहां पर बता दिया. तो दिस इज हाउ यू विल शो 10,000, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली. दैट इज वाई स्टार परिवार इंपॉर्टेंट है. Next, donation for club building is 60,000. It's a specific donation. We'll write separately. Donation for club building. Donation for club building. हमें कितने का डोनेशन मिल रहा है? We are getting the donation of 60,000. That we'll write directly in the outer column. 60,000. तो रिसिप्ट साइड सब खत्म कर दिया. लेट्स गो ऑन टू द पेमेंट साइड. परचेज ऑफ फुटबॉल, परचेज ऑफ फुटबॉल, वी राइट दैट इन द इनर कॉलम. 80,000, वी राइट दैट इन द इनर कॉलम. परचेज ऑफ फुटबॉल. देन टूर्नामेंट फीस, 2 लाइन छोड़ देंगे, उसमें एडजस्टमेंट है. देन टू टूर्नामेंट फीस, हमने बेटा पार्टिसिपेट किया है, टूर्नामेंट है, अपना क्लब है, फुटबॉल जीत के आएंगे, सामने वालों की लगा के आएंगे वाट, तो टूर्नामेंट फीस 10,000 है. देन अफिलिएशन फीस, एनी रिनाउंड क्लब के साथ हम अफिलिएट हो रहे हैं, तो उसका अफिलिएशन फीस हमको पे करना पड़ रहा है 2,000. देन रेंट ऑफ प्लेग्राउंड में बहुत सारे एडजस्टमेंट है. रेंट फॉर प्लेग्राउंड, वी हैव लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट. दैट्स व्हाई वी राइट इट इन द इनर कॉलम. 18,000 रेंट फॉर प्लेग्राउंड. बेटा 4-5 लाइन छोड़ देना रेंट फॉर प्लेग्राउंड के बाद. रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कितनी अमाउंट है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस की? 30,000. डायरेक्टली वी टेक इट इन द आउटर कॉलम. 30,000 रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस.
देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस और रिफ्रेशमेंट 4000 है। देख यार ये अमाउंट लिखने में गलती हो जाती है ना, फिर लोचे हो जाते हैं, फिर टैली नहीं होती यार मेरे से। रिफ्रेशमेंट के 4000 हैं। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, 30,000, सॉरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर 30,000। रिफ्रेशमेंट 4000 है, ट्रैवलिंग 30,000 है, इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपया। सो इन्वेस्टमेंट्स हम लिख देंगे 1 लाख रुपीज, नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम, 1 लाख इन्वेस्टमेंट्स। Then salary 22,000, we write that in the inner column. Salary 22,000, we write that in the inner column. Then additional furniture आया 24,000 का, अभी जो नील हो गया था उसमें हम ऐड कर देंगे परचेज ऑफ फर्नीचर 24,000, परचेज ऑफ फर्नीचर। Then miscellaneous expenses 8,000, to miscellaneous expenses 8,000, and closing balance of cash on the asset side, cash balance 28,000, cash balance 28,000. But all posting on the payment side also done. We are ready to rock with the adjustments. पहला, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13-14 का 10,000, करंट ईयर का अभी भी बाकी है 16,000, एंड कुछ मेंबर्स ने नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया है। अब अगर आपको मेरा लेक्चर याद है, थियरी का अगर आपने लेक्चर मेरे देखे, कंसेप्ट को अगर आपने समझा है, तो मैंने बेटा अपने लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के एक बात कही है कि इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम जाएगा, एंड दैट टू ऑफ ओनली करंट ईयर। करंट ईयर નું જશે, સબસ્ક્રિપ્શન છે, જે પણ છે બધું કરંટ ઈયર નું જ ઇન્ફોર્મેશન લેવાની યાર એમાં। હવે અગર આ લોજિક મગજમાં સેટ કરી દઈએ, if we keep this logic in mind that income expenditure will show only current year's income, nothing else to be shown, only current year's income, then what will happen to these adjustments? Let's begin now. Subscription include 10,000 which is pertaining to the last year, मतलब ये 2,46,000 में लास्ट ईयर के कुछ बाकी थे सब्सक्रिप्शन, वो हमने इसमें ऐड किए हैं। मेंबर ने हमको करंट ईयर में दिया लास्ट ईयर का पैसा, लेकिन वो तो लास्ट ईयर का पैसा है जो करंट ईयर में मिला, लेकिन वो है तो लास्ट ईयर का, तो करंट ईयर की इनकम में, यस यू राइट, नहीं आना चाहिए, करंट ईयर की इनकम में वो नहीं आना चाहिए। तो हम माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम LY, दैट इज ऑफ लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का 10,000 हमको माइनस कर देने का, माइनस, ઓકે। અને સર એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન છે તો એની તો બે ઇફેક્ટ આપવી જોઈએ, યસ, બીજી ઇફેક્ટ આવવી જોઈએ, અને આપણે આપી દીધી છે, જરા જોવો, વી હેવ ઓલરેડી મેડ લાસ્ટ યરની બેલેન્સ શીટ, કેમ કે લાસ્ટ યરનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે તો લાસ્ટ યરની બેલેન્સ શીટમાં આવી ગયું। The second effect is already given by us when we were finding out the capital fund balancing figure, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में नहीं आएगा आउटस्टैंडिंग, बिकॉज वो आउटस्टैंडिंग नहीं है, लास्ट ईयर बाकी रहा था, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो करंट ईयर में हमारे मेंबर्स ने उसका पैसा भर दिया, तो अब वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहा है, तो बैलेंस शीट जो करंट ईयर की बना रहे हैं उसमें नहीं आएगा, लेकिन लास्ट ईयर की जो बनाई थी उसमें है, तो दूसरी इफेक्ट हमने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दे दी है। એટલે પછી આ આઉટસ્ટેન્ડિંગ સબસ્ક્રિપ્શન જે લાસ્ટ યર છે એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ પછી હવે નહીં આવે, because it's already posted in the last year's balance sheet. So we need to subtract, because that is income of last year included here, not to be done.
not at all permitted. પછી subscription of 14-15 amounted to 16,000 which is of current year. Now current year का कुछ पैसा लेना बाकी है, मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया करंट ईयर का, तो वो तो आउटस्टैंडिंग है, अभी पैसा आया ही नहीं, करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो मुझे प्लस करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिखो करंट ईयर। बेटा मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में मस्त एक टेबल बना के दिया था यार, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का हो तो प्लस, लास्ट ईयर का हो तो माइनस, प्री रिसीव्ड प्रीपेड करंट ईयर का हो तो माइनस, लास्ट ईयर का हो तो प्लस। तो देखो अभी वही सारी चीजें आ रही है, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना हो, समझा हो, लेकिन नहीं सर मैं क्यों सुनूं, मैं सुनूं क्यों? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 16,000 हमने यहाँ पर बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दिया, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगा, क्योंकि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का पैसा आना बाकी है, तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिख देंगे करंट ईयर एंड द अमाउंट इज 16,000। ओके आगे करते हैं, चलो। तो ये 10,000 और 16,000 की इफेक्ट समझ में आ गई, आगे करते हैं। सम मेंबर्स पेड 15-16 नेक्स्ट ईयर का एडवांस में अभी से पे कर दिया 8,000 नेक्स्ट ईयर का। कुछ ऐसे हमारे मेंबर्स हैं फुटबॉल एंथुजियास्टिक, साल खत्म हुआ कि भाई तुम ले लो भाई हमारा एडवांस में ही तुम पैसा ले लो, तो अगर हम इनसे एडवांस में पैसा ले रहे हैं तो वो नेक्स्ट ईयर का है, करंट ईयर में नहीं आना चाहिए। तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि करंट ईयर में ना होવું જોઈએ, तो એ પણ આપણે માઇનસ કરીશું પ્રી रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ दैट इज करंट ईयर। मतलब करंट ईयर में मेरे को नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन मिल गई है, नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल गया, तो 8,000 भी हमको माइनस करने का, 8,000 भी अपने को माइनस करने का। एंड ये जो बेटा आपने प्री रिसीव्ड है, ये जो अपना प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन जो है, जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस में हमको मिल गया, तो द फुटबॉल क्लब इज लायबल टू गिव देयर सर्विसेज, उनको इन मेंबर्स को सर्विसेज देनी ही पड़ेगी। तो प्री रिसीव्ड जे छे दैट इज माय लायबिलिटी, pre-received subscription and the amount goes to 8,000 pre-received subscription, the amount goes to 8,000। any the doubts, आउटस्टैंडिंग को हमने यहाँ पर कर दिया any the doubts। सर डाउट कैसे पूछें, लेक्चर देखते देखते ना समझ में आए तो व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर दो, समझा देंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और इस पर एमसीक्यू आने के भरपूर 100% चांस है एमसीक्यू आएगा। वो हमको पूछेंगे कि भाई फाइनल अमाउंट सब्सक्रिप्शन की कितनी बाहर जा रही है, तो 2,46,000 में 10 माइनस किया तो 2,36,000, 236 में 16,000 ऐड किए तो 2,52, और उसमें से 8,000 माइनस किए तो 2,44,000। that's the amount that will be going in the outer column, 2,44,000। तो सब्सक्रिप्शन के एमसीक्यूज इस तरह से बनेंगे कि कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का जाएगा इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो 2,44,000 जाएगा करंट ईयर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस प्री रिसीव्ड माइनस, तो इस तरह से हमने सब्सक्रिप्शन की इफेक्ट कंप्लीट कर दी। सेकंड वाले पे चलते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड आउटस्टैंडिंग है लेकिन अभी तक मिला नहीं है 500 रुपया, कहना से आउटस्टैंडिंग है अभी तक मिला नहीं है 500, इट्स ऑफ करंट ईयर ओनली, इट्स ऑफ करंट ईयर ओनली, तो हम इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500 and outer column 2,500। now this outstanding interest, can I say that amount is receivable, it's my asset, outstanding interest is my amount receivable, that's my asset,
तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500 रुपीज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500 रुपीज. ओके. Then the third, book value of the furniture sold 14,000 already dealt. उसका हमने डेल्ट कर दिया. यहाँ से वो डायरेक्ट पहले 14 माइनस किए और 4,000 का नुकसान हमने यहाँ पर बता दिया है. मतलब ये फर्नीचर का काम फिनिश. थर्ड एडजस्टमेंट इज ऑलरेडी डन, डेल्ट. बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी हो गया. Then fourth, the rent of the playground 1,800 and salary 2,000 of the current year 14-15. Current year is outstanding. मतलब करंट ईयर का रेंट 1800 देना बाकी है करंट ईयर की. सैलरी अभी और 2000 देना बाकी है. तो अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है करंट ईयर का, तो हमें वो प्लस कर देना है. आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रैकेट में लिखेंगे करंट ईयर, दैट इज 1800, वो हमने प्लस कर देना है. देन सैलरी में भी है कुछ 2000 आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 for the current year, 24,000 will go in the outer column. 24,000 will go in the outer column. Then outstanding rent है 1800, तो उसका भी देखते हैं ना. ये दोनों ही एक्सपेंस पे करने बाकी हैं. पे करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है, so that will go to the liability. Outstanding rent 1800 અને outstanding salary, outstanding rent and outstanding salary 2000, outstanding rent and outstanding salary 2000. Now rent of the playground last year का outstanding it has been paid in the current year. मतलब ये जो हमने 18,000 जो भरे हैं ना, उसमें से 1500 लास्ट ईयर का भाड़ा था रेंट का, जो अभी हमने भरा करंट ईयर में. बट कैन आई से दैट वाज एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर. वी पेड इट इन दिस ईयर बट इट इज एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर. इट शुड नॉट कम इन द करंट ईयर. तो लास्ट ईयर वाला जो है वो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट जो लास्ट ईयर वाला है वो हम माइनस कर देंगे 1500 रुपीज. 1500 रुपीज हम माइनस कर देंगे बराबर છે. अब કેટલી રકમ સર આઉટર કોલમમાં જશે, જરા કેલ્ક્યુલેટર નિકાલો. 18,000 में 1800 प्लस हुए तो 19,800, उसमें से 1500 गए तो 18,300. कहना सर दैट्स द अमाउंट विल बी गोइंग इट इन द आउटर कॉलम, 18,300. नाउ सर आउटस्टैंडिंग रेंट लास्ट ईयर का जो है 1500, उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, आ गई है, दे दिया है. लास्ट ईयर का बाकी था, तो देखो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में है आउटस्टैंडिंग रेंट 1500, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट. करंट ईयर की बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट ईयर बाकी था, अभी तो पे कर दिया है. तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में ना आ जाए, इट विल गो इन द बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट ईयर. ऑलरेडी रिकॉर्डेड, फाउंड आउट द कैपिटल फंड, तो नो सेकेंड इफेक्ट टू बी गिवन, इट्स ऑलरेडी गिवन, नो सेकेंड इफेक्ट. देन स्टॉक ऑफ फुटबॉल कितने बचे हमारे पास क्लब में, 31 मार्च में हमारे पास बॉल कितने बचे, 4000. नाउ ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने फुटबॉल परचेस किए थे, 80,000 के. अब उसमें से कुछ स्टॉक 4,000 का बच गया, कॉमन सेंस, आई विल यूज इट इन द नेक्स्ट ईयर. कुछ 4,000 का बच गया है तो आई विल यूज इट इन द नेक्स्ट ईयर. सो यहाँ से माइनस कर देंगे हम, माइनस, बिकॉज आई एम गोना यूज दिस स्टॉक इन द नेक्स्ट ईयर. तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बॉल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फुटबॉल 4,000 हम माइनस कर देंगे 76,000. we'll write that in the outer column, 76,000.
Now can I say this stock of football will be used in the coming year? It's my asset. I'll use that in the coming year. It's my asset. The closing stock of football 4000. Closing stock of football 4000. Right? But I need to change the color. It's an adjustment, na? I need to change the color. Then next, closing stock of football हमने कर दिया. Then depreciate furniture by 20%. Very simple adjustment यार, ये सबको आना चाहिए. Depreciation 20% हमको लेना है. तो देखो जो फर्नीचर सेल हो गया तो वो तो गया नील. फिर और परचेस किया 24,000 का, इसी पर हमें डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा. तो लेस कर देते हैं depreciation at 20%. depreciation at 20%. तो हमें माइनस कर देना है 4,800. 2400 का 20% लेंगे तो 4,800 अपने को माइनस कर देना है. ठीक है, 4,800. एंड आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 19,200. या जस्ट कंफर्मिंग 20% 4,800 है ना, नहीं तो फिर गलती ना हो जाए यार. फिर पता है ना भाड़े होते अमाउंट में इधर उधर हो जाता हूँ मैं. 19,200 4,800 का डेप्रिसिएशन आया. सो ये डेप्रिसिएशन हम इनकम एक्सपेंडिचर में सेकेंड इफेक्ट दे देंगे. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,800. बट आई डोंट सी एनी हिडन एडजस्टमेंट्स. जितने भी एडजस्टमेंट्स थे वो सारे हमने कर लिए. कोई हिडन एडजस्टमेंट मुझे दिख नहीं रहा है. कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सब्सक्रिप्शन वाला था, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का था. फिर ये आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस वाला कंसेप्ट जो आया वो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के व्यू पॉइंट से. उसकी करंट ईयर की 2 इफेक्ट देने की लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में चली गई, इसलिए दूसरी इफेक्ट का कुछ अपने को करने का नहीं. वो सारी बातें आपको बेटा ध्यान में रखनी है. सारी बातें यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, एवरीथिंग. बट आई एम गिविंग यू 2 minutes. प्लीज गो थ्रू विद द आइटम्स. जो भी हमने इनकम एक्सपेंडिचर और उसमें जो भी लिखा है वो आइटम्स हम गो थ्रू करते हैं. तब तक मैं टोटल करके रखता हूँ. यहाँ पर ये आ रहा है 246,500 અને 181,000. चेक कर लेवा दो बेटा, चेक कर लेवा दो. 181,100. बेटा तुमको टोटल ना दिखे, मुझे दिख रहा है. 246,500. 246,500. 65,400. ओके. हाँ बेटा, डिड यू वेरीफाई कि कौन सी चीज कहाँ पर है? गजब्स हो बेटा तुम लोग, गजब्स. अब क्या ना से डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का मैं टोटल वेरीफाई कर रहा था, तो क्रेडिट साइड का ज्यादा है. एंड द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज, लेट्स डू इट ना यार. वी हैव द फंक्शन ऑफ द एडिशन एंड द सम्स. 246,500. 246,500. क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो सेम टोटल हम यहाँ लिख देंगे 246,500. और इसमें से हमने बेटा माइनस कर देने हैं ऑल दीज आइटम्स वन बाय वंस हमने माइनस कर देने हैं. एक्सेल भी इतने सारों को माइनस करने के बाद मेरे को पूछेगा ला तेने करवू छे माइनस तुम्हारे के ऊपर से. हाँ करवू छे नहीं यार, जल्दी करी बताओ. तो 65,400 इज द अमाउंट विच इज लेफ्ट. सो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था, इनकम का टोटल ज़्यादा था, लेकिन तुम समझो हमारा ये जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट करने का इंटेंशन है. नॉट फॉर प्रॉफिट,
तो ये जो आया उसे हम कहते हैं सरप्लस, विच इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, तो उसे हम सरप्लस कहेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, दैट इज माय सरप्लस 65,400। एंड ये 65,400 हमने कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, तो ये 3500 को सॉरी इनर्स कॉलम में लेना पड़ेगा, इनर्स, एंड इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा सरप्लस 65,400, सरप्लस मुझे ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट विल गिव मी द फाइनल अमाउंट ऑफ द बैलेंस शीट। सम मैंने भी किया हुआ है बेटा, फाइनल अकाउंट, फाइनल अमाउंट ऑफ द बैलेंस शीट 95,900, 95,900, and then take up your calculator, let's do the totaling, take up your calculator, let's do the totaling, 167,700 ऐसा आ रहा है, total of the liability side 167,700, that's the total I'm getting on to the liability side। asset का मैं verify कर लेता हूँ मेरे हिसाब से, ओ झाले आले 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 रे आले रे बाबा आले, शिवाजी महाराज एंड जय भोलेनाथ, आ गया टोटल ये 167,700, 167,700, that's the total on both the sides, and it's matching, that's amazing, happy, it's matching 167,700, 167,700। so but this is one of the important sum and very important from MCQ viewpoint, ठीक है, सब्सक्रिप्शन वाला और वो सब ध्यान से आप कर लीजिएगा। चलो बाय बाय।